Good morning to all of you. Honorable Principal Dr. Murnal Bhardwaj ma'am, Vice Principal Dr. Arif Anjum, IQAC Coordinator Shakib Ahmed, sir, our prominent keynote speaker, College Counselor Ms. Nimra Sheikh, all faculty members and all dear students, a very good morning to all of you. I am Professor Zinira. I feel truly delighted to welcome you all to this webinar on stress causes science in college students. This webinar is jointly organized by the Campus Health Committee and IQSC of our college. In today's students' life, stress has become very common. Studies, exams, family expectations, and future worries often make students feel tired, anxious, and confused. Through today's webinar, we will try to understand what stress is, how we can overcome, and why it happens, and how we deal with in a healthy way. Now, I request our respected principal, Professor Dr. Murnal Bhardwaj, ma'am, president of today's program, to kindly give the welcome address and guide us with their valuable words. Over to you, Yes. ma'am. Yes, thank you, Zindra madam. Good morning to one and all. I'm happy that my student and the newly appointed counselor of the college, Nimra, will be delivering a session on stress and coping. And as ma'am has rightly pointed out, that this particular topic is of very much important in today's scenario. This initiative is being taken by the Campus Health Committee, which is being coordinated by Zinira Madam and the IQSC of our college. Vice Principal Arif Sir has also joined, and IQSC Coordinator Shakib Sir has joined, all the faculty in charges and dear student friends. This stress is basically, it's the most, kindly, it's being affecting everybody in today's scenario. And when we talk about stress, as a psychologist, I can say in simplified version of stress, it can be defined as any situation, any condition which puts pressure on an individual, and that pressure is, it's an unpleasant feeling, and the person or individual feels that he or she is not able to cope up with that particular unpleasant feeling is called as stress. There is a thin margin in various terms which are being associated with stress. Anxiety is there, then frustration is being there, and it's a chain of things that and ultimately it leads to depression, and in some situations it may affect a person's mental health in an adverse way, and the individual can attempt suicides also. So I think in today's scenario, stress is being it is being affected across ages. In school children also is, it's being there, in middle age, in at job also people face stressful situations. In old age also there are so many issues related with stress. In psychology, there are various terms which are being related with stress, and Nimra will be surely covering all the things. But there are two terms which I will share with all of you. One is eustress, which is a positive stress. We say that optimum level of stress or anxiety, it's being needed if the performance or any performance or efficient functioning has to be there. For example, if students are being studying and they want to appear for the examination and they want to succeed in examination, optimum level of stress is needed, because if stress is not there, there won't be any pressure and they won't study. But when this stress, you stress, it crosses its limit to certain certain level, then it becomes distress, which is called as negative stress, and it affects our mind, mental health, as well as it is also, it affects our physical health, and many diseases which are being commonly seen in all of us, such as migraine, then gut issues, diabetes 2, cardiovascular diseases, and many more are being related with stress. And these diseases are known as psychosomatic illness. Means soma means body and psyche means
mind. So mind body connection is being managed properly, then these all adverse effects can be minimized. So that we call in psychology as coping mechanisms. And each and every individual has certain mechanisms which can be implemented constructively and positively. So if we manage our time, if we engage ourselves in recreational activities, if we try to do meditation every day, and this mobile, that screen time has to be reduced, because it is also causing lot of physical and mental stress related issues in all of us. So I think if coping mechanisms are being properly managed by the individual at organizational level, also certain coping strategies are being implemented by various organizations to keep their employees stress free to some extent. So there are multiple types of stress, and Nimra will be addressing that. I won't be taking much time, but this is a very nice initiative which is being taken by health campus health committee, that they have taken this particular important topic which is being important to all of us. And in every one there will be one session which will be conducted by Nimra, and she will be addressing various issues which are being prominently faced, psychological issues which are being prominently faced by all of us. At the end, I can say, state that if we manage stress, then life becomes more easy, healthy, and happy. So, my wishes to all of you. And this session will be an interactive session. Nimra also wants in the same way. And so, I appeal to all of you to, at the end of the session, you can ask questions and there should be an interaction. So, thank you. Thank you all. Thank you, ma'am, for your motivating words and for always supporting students' well-being. Now it's time to for the introduction of our respected guest. I would like to call Professor Akhtar sir, head of the Department of English, to do this honor. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. I'm Professor Akhtar. I would like to introduce our speaker for today's webinar. Our speaker is Ms. Nimra Sheikh. She is a psychologist and the academic counselor of our college. She has completed her master degree in clinical psychology. She has also done an advanced diploma in counseling and mental health and diploma in industrial psychology. She has performed very well in her studies. With her knowledge and experience, she helps students deal with study pressure, stress, and personal problem. Her counseling support has helped many students feel more confident and focused. Today, Ms. Timra Sheikh will speak on stress causes signing college students, and her talk will help us to understand stress in a very simple and easy way and how we can manage it in our daily day-to-day life. So let's welcome along with me, and we welcome Ms. Timra on behalf of our college. We welcome you, ma'am. Yes, I want to add, one more thing, that Nimra, she's my student and she was the topper in the university. She has done TY Oh, ma'am. BSc in psychology, and later on she did post graduation from the same department where I was heading that time the department. And she was a very good student, and she is a merit holder of Savitribai Phule Pune University. Yes, ma'am. Surely, ma'am. All these will help our students to grow in their personal and academic life. So we are Yes. so fortunate enough to have such counselor who had a great academic excellence, and this will surely very fruitful for all of us. Look, Yes, yes, sure. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, for your kind introduction. मैम वैसे तो आपकी इतनी सारी जरूरत नहीं थी तारीफ करने की, बट इट्स ओके। आप जब भी बोलते हैं अच्छा ही लगता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मैम। करें Yes, ना Yes, ma'am. yes, स्टार्ट? you can start. Yeah. चलिए पहले मैं शेयर कर देती हूँ। करना है।
मैम स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या? Yes, ma'am. हो रही है, ओके। Yes, ma'am. Your PPT is now visible. ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। Ma'am, yes, ma'am. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रेस। सबसे पहले स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस इज ब्रॉडली डिफाइंड एज बॉडीज नेचुरल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन। मतलब हम कोई सिचुएशन में, हमारे सामने अगर कोई सिचुएशन आती है तो हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं साइकोलॉजिकली और फिजिकली, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। उसको जो बॉडी का रिएक्शन होता है, हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं उस सिचुएशन को हम स्ट्रेस बोल सकते हैं। स्ट्रेस कब होता है? कि जब डिमांड जब बॉडी का जो डिमांड होता है, मतलब सिचुएशन का जो डिमांड होता है उससे हमारी कैपेबिलिटी कम है, मतलब हमारी उससे एबिलिटी कम है और डिमांड ज्यादा है। ये दोनों के बीच में जब डिफरेंस आ जाता है, तो जब जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम स्ट्रेस डिफाइन कर सकते हैं। मैम ऑडिबल हूं ना मैं? Yes, ma'am. ओके मैम। डेली लाइफ में हमारे को, मतलब जब से हमारा दिन स्टार्ट होता है फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, हमको बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं। जैसे कि अगर हम उठने के लिए लेट हो गए तो आगे की हमारी सारी चीजें भी लेट लेट होती जाती है। उससे माइनर माइनर स्ट्रेस हमारे माइंड में जो है क्रिएट होते जाता है। वो जब स्ट्रेस है, अगर हम वो स्ट्रेस को कोप नहीं करते हैं या हम उसको लेट गो करते हैं, थोड़ी थोड़ी सिचुएशन पे जो जो छोटा छोटा स्ट्रेस आता है हम उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम उसको लेट गो करते चलते हैं। मगर क्या होता है कि अगर हमने इस स्ट्रेस को नजरअंदाज किया तो आगे जाकर वो स्ट्रेस हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है, या कोई तो भी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में हम उस स्ट्रेस की वजह से जा सकते हैं। इसके लिए हमको स्टार्टिंग में ही क्या करना है कि जो हमारे माइनर माइनर से स्ट्रेस है उसको हमको कैसे रिलीज करना है, कैसे उससे हमको रिलीफ चाहिए, उसके लिए हमको कोपिंग मैकेनिज्म्स देखना है, या हमारी जो भी हैबिट्स है उसको अगर हम कोई चेंज कर सकते हैं तो उसको चेंज करने के लिए हमको देखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैम ने अभी बोला था कि पॉजिटिव स्ट्रेस और निगेटिव स्ट्रेस, जिसको हम यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस बोलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि एकेडमिक स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस और फिजिकल और मेंटल फटीग जो इंडिविजुअल को होती है। सबसे पहले हमको आज फोकस जिस चीज पर करना था, दैट इज एकेडमिक स्ट्रेस। एकेडमिक स्ट्रेस क्या हो सकती है कि एकेडमिक मतलब कि कॉलेज स्टूडेंट्स जो भी अभी स्टडीज में है उनको स्ट्रेस जो फील होता है, स्ट्रेस किस वजह से फील होता है कि अगर उनके एग्जाम्स है, स्कूल वर्क्स है, डेडलाइंस है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उनका असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हुआ है, या उनके एग्जाम्स है, उनका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीज है जो उनको क्लियर नहीं है, उसकी वजह से उनको स्ट्रेस आता है। या बहुत सारे स्टूडेंट्स का आजकल कैसे होता है कि वो लोग एग्जाम के पहले ही पहले से प्रिपरेशन ना करते हुए 1 या 2 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फिर लेट नाइट जागना होता है। उसकी वजह से भी उनके जो कंसंट्रेशन लेवल है एग्जाम के दिन, मतलब कि अगर आप 1-2 दिन पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से आप परफॉर्म सही से नहीं कर पाते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको पहले से ही आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको टास्क आपके पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। आपको आपके जो जो टू डू लिस्ट बोलते हैं एक, वो आपको प्रिपेयर करना है। वो प्रिपेयर करके आप आपके स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हो। आपका जो भी डेली डेली हैबिट्स है या डेली जो भी आपकी चीजें हैं, जो जो आपको करना है, आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो विद टाइम। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका जो स्ट्रेस है वो कम होते जाएगा।
अब सबसे पहले हमको देखना है कि एकेडमिक स्ट्रेस क्या होता है। एकेडमिक स्ट्रेस रेफर टू मेंटल एंड फिजिकल चैलेंजेस स्टूडेंट फील्स ड्यू टू स्कूल वर्क। उनके स्कूल वर्क की वजह से उनको जो भी चैलेंजेस आते हैं अपने गोल को कंप्लीट करने में, वो उसको हम एकेडमिक स्ट्रेस बोल सकते हैं। उनके डिफरेंट डेडलाइंस वगैरह जो होती है वो उनकी अगर कंप्लीट नहीं हुई तो वो जो स्ट्रेस होता है उसको हम एकेडमिक स्ट्रेस बोल सकते हैं। एग्जाम्स के टाइम पर उनको स्ट्रेस होता है, कंपटीशन वगैरह है, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह उनको प्रेजेंट करना है, वो टाइम पर उनका जो स्ट्रेस होता है वो सारी चीजों को हम एकेडमिक स्ट्रेस बोल सकते हैं। अब क्या होता है एकेडमिक स्ट्रेस, मतलब कि जब आपको एक डेडलाइन दी जाती है या आपको एक प्रेजेंट करने के लिए कुछ चीज दिया जाता है, अब वो चीज उसको हम एज अ डिमांड करके कंसीडर कर सकते हैं। अब वो डिमांड को कंप्लीट करने के लिए अगर हमारे पास उतनी एबिलिटी नहीं है, उतने हम कैपेबल नहीं है, तो वो चीज को क्रिएट करने में जो हमारा बॉडी का रिएक्शन होगा वो चीज को हम एकेडमिक स्ट्रेस बोल सकते हैं। एकेडमिक स्ट्रेस को डिक्रीज करने के लिए जो हम कर सकते हैं वो एक फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले के बहुत सारे डेडलाइंस है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, स्टडीज पर भी फोकस करना है। दैट टाइम में आप कैसे क्या कर सकते हो, सबसे फर्स्ट जो है दैट इज द पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि आपको आपका जो वर्क, आपकी जो स्टडीज है वो आपको डिवाइड करना है बिटवीन 25 टू 30 मिनट्स। मतलब कि आपको थोड़ी स्टडी करना है, फिर आपको नैप लेना है या इंटरवल लेना है, फिर थोड़ी स्टडीज करना है। ऐसे अगर आप अपना शेड्यूल बनाते हो तो उसकी वजह से भी आपका जो एकेडमिक स्ट्रेस है वो डिक्रीज होता है। उसको हम बोलते हैं द पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें क्या होता है 25 और 30 मिनट्स आप वर्क कर रहे हो, फिर आप नैप ले रहे हो, फिर आप इंटरवल ले रहे हो 10 टू 15 मिनट्स का, फिर उसके बाद आप वापस से वही चीज कर रहे हो, मतलब 25 मिनट्स, फिर ब्रेक, फिर नैप, फिर 25 मिनट्स। ऐसे अगर आप अपना शेड्यूल बनाते हो तो उससे भी आपका जो स्ट्रेस लेवल है, एकेडमिक स्ट्रेस है, वो कम डिक्रीज होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा आगे फर्दर स्टडीज के लिए। सेकेंड टेक्निक जो हम यूज कर सकते हैं एकेडमिक स्ट्रेस को डिक्रीज करने के लिए, दैट इज टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग में क्या होता है, आपको डिजिटल प्लानर बनाना है। डिजिटल डिजिटल प्लानर में आपको आपके जो जो वर्क है वो असाइन करना है। तो जो जो वर्क के लिए आपको जितना जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से वो प्लानर आपको आपके टू डू लिस्ट बनाकर देगा, फिर आपको वो चीज फॉलो करना है। जहाँ पर आपका टाइम ब्लॉक हो रहा है वहां पर आपको वो चीज सॉर्ट करना है कि पहले मुझको ये चीज करना है, फिर उसके बाद मैं वो चीज कर रहा हूँ। प्रायोरिटी देना है आपको वर्क को, कि फिलहाल के लिए आपको प्रायोरिटी पर कौन सा वर्क करना है। तो अगर आप वैसे तरीके से आपका टाइम टेबल या शेड्यूल प्रिपेयर करते हो तो भी आपका स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड वे जो है, जो थर्ड टेक्निक हमारे पास है, दैट इज टास्क चंकिंग। टास्क चंकिंग में क्या होता है कि अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ब्रेक प्रोजेक्ट इनटू माइक्रो टास्क। प्रोजेक्ट जो है आपका या कुछ भी असाइनमेंट वगैरह है उसको आपको आपके माइक्रो टास्क में कन्वर्ट करना है, माइक्रो टास्क में ब्रेक करना है, जिसकी वजह से आपको पहले कौन सी चीज करना है उस पर आप फोकस करके उसको क्लियर करके उसको साइड में रख सकते हो। फिर सेकेंड टाइम पे आप सेकेंड चीज को लेकर उसको क्लियर करके उसको कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो राइट द इंट्रोडक्शन फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ आपको डेटा कलेक्शन वगैरह के लिए बाद की चीज है, पहले आप इंट्रोडक्शन वगैरह देखो। या तो अगर आप डेटा कलेक्शन पे जा रहे हो तो आप पहले वो वाला वर्क फिनिश कर लो, फिर आगे का वर्क करो। ऐसे अगर आपने आपके टास्क को डिवाइड किया तो उसकी वजह से भी आपका जो एकेडमिक स्ट्रेस है वो आप आप डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारे पास सोशल स्ट्रेस और सोशल एंड ट्रांजिशनल स्ट्रेस। सोशल और ट्रांजिशनल स्ट्रेस में क्या होता है कि अगर एक सोशली कोई सिचुएशन है वहां पर आप फिट नहीं हो रहे, दैट इज फिटिंग इन। अगर आप वहां पर फिट नहीं हो रहे हो तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। जैसे कि आप अगर कोई फैमिली फंक्शन वगैरह में जाते हो, वहां पर सिचुएशन अलग है, अलग अलग काज अलग अलग
माइंड वाले लोग हैं, मतलब आपको वहां पर फिट होने में अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, तो वो टाइम पर जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको हम बोल सकते हैं सोशल स्ट्रेस। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस होता है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस इज मेनली इन सोशल स्ट्रेस, मतलब कि आप एक सोशल में एक इन्वायरमेंट में हो, जैसे कि अगर आप स्टडीज के लिए कई रूम्स वगैरह पे, हॉस्टल वगैरह पे रह रहे हो, एक इन्वायरमेंट में रह रहे हो, मगर आप वहां पर फिट नहीं हो रहे हो, तो वहां वो टाइम पर जो आपको स्ट्रेस होता है उसको हम सोशल स्ट्रेस बोल सकते हैं। उसको दूर करने के लिए, उससे उसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमको जो है हमारी तरफ से कुछ कोशिश करना पड़ेगी, हमारी तरफ से इनिशिएट करके न्यू कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, कुछ हैबिट जो है हमारे वो चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह के लिए हमको बाहर जाना है, क्या आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है उस चीज को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, वो सिचुएशन में आपको आप एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक हॉस्टल में रह रहे हो और आपको वहां पर इन्वायरमेंट नहीं जम रहा है, तो आप उस चीज को एडजस्ट कैसे करोगे? उस चीज को एडजस्ट करने के लिए आपको कोई क्लब वगैरह ज्वाइन करो, या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह होता है कॉलेज में, वो वाले कमेटीज को ज्वाइन करो, तो जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा। बाकी टाइम जो है वो आपके पार्टनर जो है, रूममेट जो है, उससे आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उसकी वजह जिसकी वजह से आपका सोशल स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, थर्ड वाला जो है हमारे पास फिजिकल एंड मेंटल फटीग। फिजिकल एंड मेंटल फटीग में क्या होता है कि आप जितना भी टाइम कॉलेज में हो उतना भी टाइम आप फोकसली स्टडीज कर रहे हो, आप अपने लेक्चर्स पूरे फोकस कंसंट्रेशन के साथ कवर कर रहे हो, तो एक टाइम पर जो है मेंटल फटीग आ जाता है। आपका जो माइंड है उसपे वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है कि भाई मैं दिन भर से यही कर रहा हूँ, अभी मुझको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपका जो आपका बॉडी है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करना है। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपको डिफरेंट इंडिविजुअल का अलग अलग तरीका होता है, आपको जो इजी लगता है आपको वो करना चाहिए। फर्स्ट जो हमारे पास है उसमें दैट इज स्लीप हाइजीन। आपका जो स्लीप हाइजीन है वो आपको मेंटेन करना है। आपको 7 to 9 आवर्स की स्लीप चाहिए। अगर आप इतना थोड़ा ज्यादा लेक्चर होने के बाद अगर आप नैप नहीं ले रहे हो, मतलब आप पूरा दिन स्टडीज करके आ रहे हो कॉलेज से, फिर रिटर्न घर पर आने के बाद फौरन स्टडीज के लिए बैठ जा रहे हो, तो आपका जो है मेंटल फटीग इंक्रीज हो सकता है। उस वजह से भी आपको स्ट्रेस इंक्रीज हो सकता है। उस स्ट्रेस को डिक्रीज करने के लिए आपको जो है आपका स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। स्लीप हाइजीन को मेंटेन करने में क्या आता है कि आपको जितनी भी आवर्स की स्लीप है उतनी आपको लेना ही चाहिए, कंपलसरी आपको उतनी स्लीप जो है वो आपकी कवर करना चाहिए। जिसके अगर आपने ना किया तो फिर उसकी वजह से आपका वो चीज का स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो सकता है, और स्ट्रेस इंक्रीज होने की वजह से आपका जो दूसरा परफॉर्मेंस है उस पर भी आपका इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि अगर आपका मेंटल फटीग ज्यादा है, आप मेंटली ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आपके सिलेबस के बारे में, आपके एग्जाम्स को लेकर, आप उसी में ही दिन भर वही सोचते जा रहे हो कि अब मुझको ये टॉपिक करना है, फिर मुझको ये करना है, फिर मुझको ये करना है, तो उसकी वजह से जो है आपका डिजिटल कर्फ्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपकी माइंड को रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ चीजें खुद से करना पड़ेंगी। अगर आप वही स्टार्ट करते हो, उसको अपने हैबिट्स में इंक्रीज करते हो, तो उस आपका जो स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, और आपको खुद ही फील होगा कि ये चीज करने से मेरा जो स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो गया है। सेकेंडली क्या होता है, डिजिटल ओवर। आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड वाला स्ट्रेस है कि डिजिटल स्ट्रेस क्या हो सकता है कि आप जब भी आपका फोन लेते हो, फोन जो हमारे हाथ में 24 आवर्स रहता ही है, जब आप उनको स्क्रॉल कर रहे हो तो आप दूसरों के रील्स देख रहे हो। यूट्यूब पे अगर आप जा रहे हो, इंस्टा पर जा रहे हो, तो आप दूसरों के लाइफस्टाइल्स देख रहे हो, वो लोग कैसे रह रहे हैं, वो लोग का क्या है, जैसे ब्लॉग्स वगैरह आप देख रहे हो, तो वो देखने की वजह से भी आपके जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, जिसको हम डूम स्क्रॉलिंग बोलते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने दूसरों का देखा कि वो कैसी
लाइफ में है, कैसे स्टडीज वगैरह कर रहे हैं, कैसे पैटर्न कर रहे हैं, कोई दिन में कंटिन्यूअसली स्टडीज करता है, कैसे नैप लेता है, अगर आप उसको परसीव कर रहे हो तो आपको प्रॉपर वे में परसीव करना है। अगर आप उसको इनप्रॉपर वे में परसीव कर रहे हो कि आप जो भी ब्लॉग्स में देख रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, सेकेंडली जो हमको देखना है, दैट इज साइन एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। अब आपको स्ट्रेस हो गया है, ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए स्ट्रेस की जो है सिम्टम्स है, मतलब के डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं। कोई फिजिकली होता है, इमोशनली होता है और बिहेवियरल। ये 3 टाइप्स के सिम्टम्स जो है वो आपको स्ट्रेस आने पर दिख सकते हैं। फिजिकली मतलब कि जिनको आप देख सकते हो। इमोशनल सिम्टम्स में क्या आता है कि आपके इमोशंस चेंज होते हैं स्ट्रेस की वजह से। बिहेवियरल सिम्टम्स में क्या आता है कि आपके बिहेवियर में आपको चेंज दिखेगा, आपके पैटर्न्स में आपको चेंज दिखेगा। अगर आपके पास ज्यादा स्ट्रेस हो गया है तो उसके बाद आपको ये जो 3 चीजें हैं उसमें आपको स्ट्रेस के ज्यादा सिम्टम्स दिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल सिम्टम्स में जो मेनली स्ट्रेस होने की वजह से होता है, स्लीप इश्यूज ज्यादा होते हैं। स्लीप प्रॉपर होती नहीं है, या किसी किसी को ज्यादा स्लीप होती है ज्यादा कोई सोता है, या किसी को नींद ही नहीं आती है। फिजिकल इश्यू में हम स्लीप इश्यू, सेकेंड वो जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। आपकी जो है वो, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है, तो वो टाइम पर बिफोर प्रेजेंटेशन आपकी जो है हार्ट बीट इंक्रीज हो जाते हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो फिजिकल सिम्टम्स में आती है कि आपके जो हमको देख सकते हैं, जो हम देखते हैं कि स्ट्रेस की वजह से आपको कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। इंडाइजेशन ज्यादा होता है, जैसे मैम ने बोला कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है वो भी जो है फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं। मेनली क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी का स्ट्रेस इंक्रीज हो गया है तो आपको स्लीप पैटर्न्स आपके चेंज हो जाते हैं, आपके हेडेक्स होता है, इंडाइजेशन इश्यूज होता है। हर वक्त जो है आपको ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, एंजाइटी जैसे फील होने लगता है। मतलब कि आप एकदम आपका मेंटल फटीग हो जाता है कि आपको बहुत ज्यादा आपको मेंटल पे प्रेशर देने के बाद आपको आपके आगे वाला जो है आपको वो समझ में आता है कि आपको आगे कौन सा मूव करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। सेकेंड जो हमको देखना है, इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स में क्या होता है कि मूड स्विंग्स बहुत हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा एकदम अचानक से सैड हो जाते हैं, या तो कभी कोई भी किसी ने थोड़ा सा भी किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत ज्यादा रोना आ जाता है। ये सारी जो चीजें हैं वो स्ट्रेस लेवल आपका इंक्रीज होता है, उसकी वजह से ये सिम्टम्स जो है वो हो सकते हैं। सेकेंड जो है बिहेवियरल सिम्टम्स। बिहेवियरल सिम्टम्स में क्या होता है कि लोनलीनेस आप ज्यादा फील करने लगते हो, सोशल से दूर होने लगते हो, कि जो भी सोशल वाली एक्टिविटीज है आप उससे एक्सपेक्ट करने लगते हो कि आपको चाहिए ही नहीं वो सारी चीजें। नेल बाइटिंग, कोई कोई लोग बहुत ज्यादा नेल बाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सब्सटेंस एडिक्शन ज्यादा हो जाता है स्ट्रेस की बढ़ने की वजह से। तो ये सारे सिम्टम्स है जो आपके स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होने की वजह से आपको दिख सकते हैं। सेकेंड जो है हमारे पास, दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस किसको बोल सकते हैं? जिसको हम यूज स्ट्रेस भी बोलते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो शॉर्ट टाइम स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस जिसकी वजह से काम करने में मोटिवेशन मिले, आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है, उसको गोल को अचीव करने में आपको एक्साइटमेंट ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको थोड़ी सी ही प्रिपरेशन करनी है और कल आपका एग्जाम है, तो वो टाइम पे जो आपका स्ट्रेस है, मतलब वो ज्यादा लेवल का नहीं है, वो कम लेवल का है, तो वो स्ट्रेस को हम पॉजिटिव स्ट्रेस बोल सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर कुछ ड्राइविंग सीख रहे हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाना आप सीख रहे हो, कार चलाना सीख रहे हो, तो सीखने के टाइम पे आपको थोड़ी सी लेवल पर स्ट्रेस होता है, बट वो स्ट्रेस जो है वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप वन टाइम सीख लेते हो तो आपको वो चलाने में खुशी होंगी, तो वो जो स्ट्रेस होता है उसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस बोल सकते हैं, यू स्ट्रेस बोल सकते हो। सेकेंड जो हमारे पास हाँ ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रेस का और एक एग्जांपल हमारे पास है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कोई आप प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो आपको स्ट्रेस होता है, मगर आप अगर प्रोजेक्ट के लीडर हो या आप किसी चीज को लीड कर रहे हो, तो वो जो खुशी होती है वो स्ट्रेस को डिक्रीज कर देती है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है मतलब हमारे को थोड़ा सा कम स्ट्रेस होता है, जिसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस बोल सकते हैं, यू स्ट्रेस बोल सकते हैं। सेकेंड हमारे पास जो है दैट इज नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस में क्या होता है कि जब डिमांड ज्यादा होती है, हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस कम होते हैं, कोपिंग करने के लिए हमारी एबिलिटी जो है वो कम होती है, उसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो शॉर्ट टर्म का भी होता है और लॉन्ग टर्म का भी होता है, जिसको हम एक्यूट और क्रॉनिक भी बोल सकते हैं। और नेगेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होने की वजह से वो हमारे को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या और भी बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स हमारे माइंड में आ सकते हैं स्ट्रेस इंक्रीज होने की वजह से। जब डिमांड ज्यादा होती है और हमारे पास रिसोर्सेस कम होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ज्यादा वर्कलोड है, एकेडमिक वर्कलोड आपके पास ज्यादा है, तो आपको जो है वो अगर आपने पहले से उस चीज की प्रिपरेशन नहीं किया है, आपने उसकी टू डू लिस्ट वगैरह नहीं बनाए हैं, या आपको पता नहीं है ये कैसे सॉल्व करना है या किस चीज को कैसे करना है, तो उसकी वजह से जो आपका स्ट्रेस है, जो लॉन्ग टर्म वाला स्ट्रेस हो सकता है, उसको हम नेगेटिव स्ट्रेस बोल सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेन क्या होता है कि आपको कॉन्स्टेंट वरी है, आपको फीस वगैरह के लिए लेकर, या आपके डेली एक्सपेंसेस जो है वो डेली एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो रहे हैं, या आपकी इनकम कम है, तो उस टाइम पर भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। जो लॉन्ग टर्म वाला स्ट्रेस है उसको डिक्रीज करने के लिए आपको रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जी। अगर आपके पास डिमांड से कम रिसोर्सेज है तो वो टाइम पे आपको जो है स्ट्रेस हो सकता है। सोशल आइसोलेशन में क्या होता है कि आप डिस्कनेक्टेड फील करते हो, आप जहाँ भी जाते हो मतलब ग्रुप्स वगैरह में हो या फिर फैमिली फंक्शंस वगैरह में जाते हो, तो आपको नहीं जाना ऐसे लगता है, या फिर अगर आप वहां पर चले भी गए तो आपको ऐसे लोनलीनेस सा फील होता है कि मुझको किसी से बात नहीं करना है, किसी से मिलना नहीं है। तो ये सब कब होता है कि जब आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वो इंक्रीज स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हमारे पास थोड़े से ये है मैनेजमेंट जो है हमको करना है, उस हिसाब से मैनेजमेंट करने के लिए जैसे मैंने वेरियस वेज बताए, फर्स्ट ऑफ ऑल के हम हमारा जो है वो टू डू लिस्ट बना सकते हैं, उस हिसाब से हम वर्क कर सकते हैं। हम डेली भी उस चीज को फॉलो करने के लिए कि आपको कल क्या करना है उसकी लिस्ट आप 1 डे पहले प्रिपेयर करते हो, तो आपका जो है करने के टाइम पर मतलब सेकेंड डे जो है आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है। सेकेंड जो हमने देखा कि 25 मिनट्स का आपको, अगर 25 to 30 मिनट्स आप वर्क कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा गैप लेना है, गैप लेने के बाद आपको थोड़ा सा नैप लेना है, फिर आप वापस से उस चीज को जो आपने लेफ्ट किया था उसी को आप कंटिन्यू कर लो, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। फिर हमने टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक देखा, टास्क चंकिंग टेक्निक देखा। टास्क चंकिंग में क्या होता है कि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी असाइनमेंट्स है, जो भी चीजें आपको सॉल्व करना है, उसको आप छोटे छोटे माइक्रो पार्ट्स में कट कर मतलब आप ब्रेक कर लीजिए। फिर वो ब्रेक करने के बाद आप एक एक पार्ट को लेकर एक एक चीजों को सॉर्ट करके फिर आप नेक्स्ट वाले ऊपर जाओगे, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो टाइम पर जो ज्यादा स्ट्रेस लेवल होना था वो थोड़े आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। तो ऐसी जो चीजें हैं उसको आपको डेली लाइफ में अडेप्ट करना चाहिए। माइंडफुलनेस टेक्निक्स होती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, उस चीजों को भी आप डेली लाइफ में अगर आपके इन्वॉल्व करते हो तो उनसे भी आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो डिक्रीज होगा।
स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स दी हुई है. दैट इज स्ट्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रायोरिटाइज स्लीपिंग. आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, अगर आपको इनफ स्लीपिंग नहीं मिल रही है, 7 to 8 आवर्स की स्लीपिंग आपकी नहीं है, तो आपको आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना चाहिए. जितनी स्लीप नीडेड है उतनी आपको स्लीप लेना चाहिए. अगर आप कंटिन्यूअसली दिन में अगर स्टडीज किए जा रहे हो, आप नैप नहीं ले रहे हो, तो आपको इन बिटवीन स्टडीज के भी आपको नैप पर फोकस करना चाहिए. आपका जो स्क्रीन टाइम है, आपका स्क्रीन टाइम आपको डिक्रीज करना चाहिए. स्क्रीन टाइम डिक्रीज करने के बाद जो है आपकी स्लीप पैटर्न में चेंजेस आ सकता है. अगर आप बिफोर स्लीपिंग आपको स्क्रीन टाइम आपके 1 से 1.5 घंटा पहले तो भी आपको स्क्रीन टाइम आपका बंद करना चाहिए. उसके बाद ही आपको सोना चाहिए. उसकी वजह से आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा. माइंड रिलैक्स होने की वजह से आपको स्लीप जो है वो जितनी आपको इनफ है उतनी आपको स्लीप मिल सकती है. सेकेंड, दैट इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस टेक्निक्स क्या होती है, जिसमें हम मेडिटेशन बोलते हैं कि आपको अपने हिसाब से आपके माइंड को रिलैक्स करना है. रिलैक्स करने के बाद प्रेजेंट में क्या चीज है, आप जहां पर हो, आपके प्रेजेंट में कौन कौन सी चीजें हैं, वो चीजों को आपको फील करना है और वो चीजों को में आपको इन्वॉल्व होना है. मतलब कि आप जहां हो वही के बारे में आपको सोचना है, वहीं पर ही आपको प्रेजेंट होना है. उस चीज को बोल सकते हैं हम माइंडफुलनेस. जैसे कि जिस ब्रीथिंग ब्रीथिंग पर आपको आपका कंट्रोल होना चाहिए. अगर आपको बहुत ज्यादा एट अ टाइम, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एकदम सडनली टेस्ट के लिए बोला, सडनली एग्जाम के लिए बोला लेक्चर में आकर, और आपको एकदम से स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जा रहा है, तो वो टाइम पर आपको जो है आपके ब्रीथिंग पर फोकस करना चाहिए कि आपको आपके ब्रीथिंग पर कंट्रोल होना चाहिए. ब्रीथ के थ्रू आप आपका स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज कर सकते हो. नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज ईट अ हेल्दी डाइट. आपको आपकी डाइट को चेंज करना है. अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको पानी की लिमिट ज्यादा बढ़ाना है. अगर आप बहुत ज्यादा सब्सटेंस एडिक्शन है तो वो चीजों को आपको कम करना है. जो अनहेल्दी चीजें है उसको आपको ज्यादातर अवॉइड करना है. आपको हेल्दी चीजों पर फोकस करना है. उसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो डिक्रीज होगा. नेक्स्ट जो है वो कनेक्ट विथ अदर्स. जो ये वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक लेवल पर थोड़ा तो भी स्ट्रेस फील हो रहा है, या थोड़ी तो भी चीजें हैं ऐसे कि आपको कुछ समझ नहीं रहा है, या आप कोई सिचुएशन में जाकर स्टक हो गए, उसके आगे आपको नहीं पता क्या करना है, देन यू हैव टू किसी से तो भी आपको कनेक्ट करना है. जो भी आपका फ्रेंड है, फैमिली है, पेरेंट्स है, जिससे भी आपको कंफर्ट है कि आप बोल सकते हो, आप बात कर सकते हो, उसको बात करना चाहिए. और अगर आप डेली लाइफ में भी छोटी छोटी चीजों पर डिस्कशन करोगे आपके पीपल से, जिससे भी आपको जो भी आपके क्लोज है उनसे आप डेली लाइफ में भी थोड़े थोड़े स्ट्रेस पर भी अगर आप डिस्कशन करते हो, तो वहीं पर ही आपका आधा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा. कि वो जो बोल रहा है सामने वाला, अगर आपको अच्छे जो भी बता रहा है, अगर आप उसको सुनना है नहीं सुनना है, बट अगर आप उनसे शेयर भी करते हो तो भी आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो सकता है. तो ये कनेक्ट विद अदर इज द मेन थिंग कि आपको बोलना ही चाहिए किसी ना किसी को कि आपको ये सिचुएशन के आगे क्या करना है वो नहीं समझ रहा है, ये चीज को लेकर इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इसको कैसे करना चाहिए. अगर आप बात करोगे तो वो सारी चीजें आपको जल्दी सॉर्ट हो सकती है आपकी. सेकेंड जो है हमारे पास माइक्रो हैबिट्स है कि डेली लाइफ में आप जो ये माइक्रो हैबिट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो आपके शेड्यूल में, जिसकी वजह से भी आपका थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस जो है डेली लाइफ का जिन चीजों से आपका स्ट्रेस बढ़ता है वो उन चीजों से आपका स्ट्रेस कम हो सकता है. जिसमें फर्स्ट हमारा जो है द 2 मिनट रूल. 2 मिनट रूल में आपको क्या करना है, व्हेन यू फील अ स्पाइक इन स्ट्रेस, inhale twice quickly through your nose and follow with one long exhale. अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉरन किसी ने तो भी
बोल दिया कि आपको ये चीज प्रेजेंट करना है या कोई चीज आपको लिखकर फौरन सबमिट करना है, तो वो टाइम पर स्ट्रेस आपका इंक्रीज हो जाता है। वो टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको इनहेल करना है, इनहेल फ्रॉम योर नोज, नोज से इनहेल करना है और एक्सेल करना है वन टाइम में। 2 टाइम्स में आपको इनहेल करना है, 1 टाइम में एक्सेल करना है। ऐसे आपको 2 मिनट्स तक करना है, जिसकी वजह से भी आप देख सकते हो कि आपका जो एकदम से आया हुआ जो स्ट्रेस था, वो सिचुएशन वाला स्ट्रेस आपका जो है वो डिक्रीज होगा और आप कंसंट्रेशन आपके जो आगे वाला वर्क है उस पर आप कंसंट्रेशन कर सकते हो, उसको उस पर आप सोच सकते हो कि इसको मैंने कैसे कम करना चाहिए, और आप वो जो है वो उसका परफॉर्मेंस आपका बेटर हो सकता है अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो ये चीज को भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास माइक्रो हैबिट्स में है दैट इज बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में क्या होता है, यूज दिस बिफोर एग्जाम, इनहेल फॉर 4 सेकेंड, होल्ड फॉर 4 सेकेंड, एक्सेल फॉर 4 सेकेंड एंड होल्ड फॉर 4 सेकेंड। क्या करना है, आपको 4 सेकेंड के लिए इनहेल करना है, 4 सेकेंड के लिए एक्सेल करना है, 4 सेकेंड के लिए आपको होल्ड करना है। ये जो है आपको 7 टाइम्स करना है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में जो अचानक से स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हुआ था, स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स है वो आपका चेंज हो सकता है। आपकी स्ट्रेस लेवल जो है फौरन एट द टाइम ही डिक्रीज होती हुई आपको समझ में आएंगी। इसको हम बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज cognitive offloading. Write your to-do list of the next day before bed. This simple act can help you feel asleep up to 15 minutes faster by offloading the mental burden of remembering tasks. एक दिन का आपका जो है नेक्स्ट डे का जो भी आपका टास्क है, जो भी आपको चीजें करना है नेक्स्ट डे, वो आप 1 डे बिफोर ही प्लान कीजिए। कैसे करना है, कौन सा करना है, किसको कितना टाइम देना है। अगर आप ये रात में सोने से पहले ही आप या फिर बिफोर भी आपको जैसे ही टाइम मिलता है आप नेक्स्ट डे का प्लान करके रखते हो, तो आपको जो है वो नेक्स्ट डे करने में स्ट्रेस कम फील होगा और आपका माइंड पहले से ही वो चीजों के लिए प्रिपेयर होगा कि आपको कौन सी चीज पहले करना है, फिर कौन सी चीज बाद में करना है, फिर किसको कितना टाइम देना है। ये सारी प्रायोरिटी वाली चीजें जो है आप प्रायोरिटी के हिसाब से वो चीजों को सेट कीजिए। 1 डे बिफोर ही आपकी टू डू लिस्ट जो है वो आपको प्रिपेयर कर देना चाहिए, तो आपका स्ट्रेस लेवल एट द टाइम कम होगा। सेकेंड जो है नेक्स्ट इज द 20-20-20 रूल, जिसमें क्या होता है, टू रिड्यूस टेक्नो स्ट्रेस एवरी 20 मिनट लुक एट समथिंग 20 फीट अवे फ्रॉम फॉर 20 सेकेंड। दिस रिड्यूस आई स्ट्रेन एंड मेंटल फैटिग। अगर आपका कंटिन्यूअसली स्क्रीन वर्क है, स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा है, आपके जॉब ऐसा है कि आपको कंटिन्यूअसली स्क्रीन के सामने ही रहना है, तो उस टाइम पर आप ये 20-20 वाला रूल फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको 20 मिनट्स तक आपको कोई चीज पर देखना है कि 20 मिनट्स के 20 सेकेंड तक 20 फीट अवे जो भी आपकी चीज है वो चीज को आपको देखना है, कंसंट्रेट करना है आपके सराउंडिंग में कितनी चीजें हैं। 20 सेकेंड तक के उनको देखना है, उनको फील करना है। उसकी वजह से आपका जो है आई का स्ट्रेन है, आई पर जो भी आपका प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस होगा। आपका मेंटल ब्रेन जो है वो आपका स्टक एक ही चीज में है, वो थोड़ा सा इन्वायरमेंटली इन्वॉल्व होगा कि आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं, वो चीजों को अडेप्ट करेगा। उसकी वजह से भी आपका जो है स्ट्रेस लेवल वो कम हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग इज 5-4-3-2-1। ग्राउंडिंग में हमको क्या करना है कि आपको 5 थिंग्स का नेम लेना है। 4 थिंग्स ऐसे 5 थिंग्स का नेम लेना है जो आप एक को इन्वायरमेंट में देख रहे हो। 4 थिंग्स ऐसे बोलना है जिसको आप टच कर सकते हो। 3 थिंग्स आपको ऐसे इमेजिन करना है या आपको रिकॉल करना है या आपको सोचना है वो टाइम पे जिसको आप सुन सकते हो। 2 थिंग्स आपको ऐसे बोलना है जिसको आप स्मेल कर सकते हो और एक चीज आपको ऐसे बताना है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आपका मेंटल लेवल जो है एकदम स्ट्रेस लेवल जो है एकदम से इंक्रीज हो जाता है, तो एट द टाइम आप ये क्या कर सकते हो
छोटी छोटी चीजें जिसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो अगर आप ये चीजों को फॉलो करोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो आपको कम होते हुए आपको खुद ही समझेगा कि मेरा जो इतना पैनिक था या मेरा मूड चेंज था, वो ये सारी चीजें करने के बाद मूड चेंज हो रहा है और स्ट्रेस लेवल जो है मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारी टेक्निक्स है, जो छोटी छोटी हैबिट्स है, वो आप आपके डेली हैबिट्स है उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो, आपके डेली पैटर्न्स में इन्वॉल्व कर सकते हो, जिसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होगा। एकदम से आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा, आपको जो एक लेवल पर जो इंक्रीज हुआ स्ट्रेस है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके कम कर सकते हो। या तो अगर आपको नहीं पता कि आपको कैसे आपका स्ट्रेस लेवल कम करना है, तो आपको ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी हैबिट्स है वो आपके डेली शेड्यूल में आप इन्वॉल्व कीजिए, तो उससे भी आपको जो है इसका इफेक्ट समझ में आएगा और आपको खुद ही समझेगा कि आपको कैसे क्या करना है। सेकंड जो हमारे पास है कि आप योगा या मेडिटेशन, ये इन चीजों को भी, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, ये चीजों को भी आपके डेली शेड्यूल में इन्वॉल्व कीजिए। नहीं कुछ तो आपको 5 to 10 मिनट्स तो भी आप अपने ब्रीथ पर कंसंट्रेट कीजिए, आपके सराउंडिंग से थोड़ा सा अलग होकर आपको आपके ब्रीथ पर कंसंट्रेट करना चाहिए, इनहेल एक्सहेल करना चाहिए कंटिन्यूअसली। तो उसकी वजह से भी माइंड के ब्रेन के सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप उसको अडेप्ट करोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली कम होगा। आज हमने जो एंड जो है दैट इज कॉल टू एक्शन। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई योर टॉप 2 स्ट्रेसर्स टुडे। स्ट्रेसर्स जो है, स्ट्रेसर्स क्या होते हैं कि जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस मिलता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो स्टिमुलाई होता है, उसको हम स्ट्रेसर बोलते हैं। तो एकेडमिक स्ट्रेस में जो है हमको स्ट्रेसर क्या होती है कि आपका डेडलाइंस है, आपके एग्जाम्स है, आपके असाइनमेंट सबमिशन डेट्स है, ये इन चीजों को हम स्ट्रेसर बोल सकते हो। तो आज हम आपको क्या करना है कि आपको आपके 2 स्ट्रेसर जो है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। हमने इतने छोटे छोटे हैबिट्स बताए, उसमें से कोई तो भी एक हैबिट आपको अडेप्ट करना है। अगर हैबिट अडेप्ट नहीं करना है फिर, या वो भी उसके साथ भी आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो भी नहीं होता है तो एटलीस्ट आप वॉकिंग तो भी कर सकते हो। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो आपको अपने आप पर कंसंट्रेट करके, आप सराउंडिंग पर थोड़ा सा फोकस करके उस चीज, अगर आप वॉकिंग करते हो या अगर कनेक्ट भी कर रहे हो आप पीपल से, इंडिविजुअल से, तो भी उसकी वजह से भी आपको जो है स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होगा। और थर्ड जो है, डोंट बी अफ्रेड टू टॉक टू अ पीयर और प्रोफेशनल। अगर आप ये सारी चीजें आपकी डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। आज जो आपको करना है कि अगर आपको फील हो रहा है कि अब हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज हो चुका है, तो सबसे पहले आपको खुद से ही फाइंड आउट करो कि दो या 3 चीजें कौन सी चीजें जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस मिल रहा है, और वो चीजों को हम कैसे रिलीफ मिल सकता है हमको स्ट्रेस से। तो उन चीजों के लिए हमको जो हैबिट्स है, माइक्रो हैबिट्स है, वो हमारे शेड्यूल में इन्वॉल्व करनी है। और थोड़ा तो भी टाइम निकाल के हमको हमारे थोड़ा सा डेली जो पैटर्न है, डेली हैबिट्स है, उसको हमको चेंज करना है। तो हमारा स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली डिक्रीज होगा। ठीक है मैम? हेलो। Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for such a clear and helpful session. Your guidance will surely help our students manage stress better in their lives. Now we move to the question answer session. This is a good opportunity for students to clear their doubts and share their concern related to stress. Shall we start, ma'am? Yes मैम, yes। Okay, okay. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. हेलो, बोलिए। My name is Tahreem Syed Irfan. I study in Trivali SC. My question is, ma'am,
How can student balance studies and personal life? Life. Studies and your personal life, na? Yes, ma'am. Okay. You're living with parents, na, or at the hostel? No, no. You're living with your parents, na? Husband, ma'am. I'm अच्छा, married. ओके ओके, यू आर लिविंग विथ योर हस्बैंड, ओके। मतलब Yes, ma'am. मुझको यही जानना था, आप हॉस्टल में तो नहीं रह रहे हो ना, मतलब घर पर ही नहीं, रह रहे हो? हाँ, घर पर तो ही एट है। द टाइम आपको क्या करना है कि आपको आपका आफ्टर कॉलेज अगर आप जब घर जा रहे हो, तो घर पर जाने के टाइम पर या घर जाने के बाद आप आपकी जो भी चीजें हुई है कॉलेज में, वो चीजों पर फोकस करो, वो चीजों को आप अलाइन करो कि आज हमने ये सारी चीजें किया, ये सारी चीजें हमको करना है। तो आप एक टू डू लिस्ट या एक पैटर्न या एक शेड्यूल जो है वो आपको आपके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये टाइम मेरे को मेरे घर वालों के लिए देना है, इतना टाइम मुझको स्टडीज के लिए देना है, इतना टाइम मुझको खुद के लिए देना है। तो ये सारी चीजें आपको एक लेवल पर आपके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगी, मतलब टाइम टेबल के थ्रू, जैसे हम बोलते हैं कि आपको दिन में कितना घंटा स्टडीज करना है या कितने घंटे में आपको अपना घर में वर्क करना है, तो वैसे आप उस चीज को मैनेज कर सकते हो। Okay. Thank you. ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। मेरा नाम अंसारी मुस्फिरा सदफ़ा, मैं टीवाई से हूँ। और मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ कैन स्टूडेंट्स स्टे काम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, बिकॉज कि जब क्वेश्चन पेपर मिलता है उससे पहले ही बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, पता नहीं जो पढ़ के आए हैं वो आएगा नहीं आएगा। तो मैम मतलब कैसा करे कि स्ट्रेस कम हो थोड़ा। क्वेश्चन पेपर आने के टाइम पे तो सबको ही नर्वसनेस ज्यादा होता है। वो चीज को कम करने के लिए, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है, तो आपको ये जानना है कि ये सारी चीजें मुझसे अच्छी भी होगी। अगर आप बाई चांस आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, दैट टाइम मैंने आपको जो माइक्रो हैबिट्स बोला कि आप अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल कर सकते हो। आप इनहेल करो, एक्सहेल करो, सांस अंदर लो, उसको थोड़ी देर अंदर ही रखो, होल्ड करो, फिर एक्सहेल करो। तो ये चीजें अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होगा। थैंक यू सो मच। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। नाम बोलिए। मेरा नाम मेरा नाम मिसबा है। मैं TYPS में हूँ। ओके। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन स्टूडेंट डील विथ फेयर एंड फेलियर्स। हाउ कैन स्टूडेंट डील विद फेयर फेयर ऑफ फेलियर्स फियर ऑफ फेलियर्स। फियर ऑफ फेलियर? हाँ। ओके। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो है, आप जब भी कॉलेज में हो, जितना भी टाइम हो, आपने जितना भी सिलेबस कॉलेज में कवर किया है, उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से ही स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम के टाइम पर ही वो चीज करना है। अगर आप पहले से ही वो चीज प्रिपेयर करोगे, तो थोड़ा थोड़ा जो है वो स्ट्रेस लेवल जो है आपका वो इंक्रीज होते जाएगा, वो टॉपिक आपको क्लियर होते जाएगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे ये टॉपिक नहीं हुआ है और मैं एक लेवल पे जाकर फेल हो सकती हूँ, या मैं मेरा पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे सकती हूँ, तो वो टाइम पे जो है आपको आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंट है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कि मुझको खुद पर भरोसा है, मैंने ये टॉपिक किया है, तो ये जब भी एग्जाम में आएगा तब मुझसे होगा। अगर आपके पास आपके टॉपिक को लेकर क्लैरिटी है कि मुझको ये हो चुका है, तो आपको आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, जब आप आपके ऊपर कॉन्फिडेंट बताओगे ना, और आपका टॉपिक भी क्लियर है आपसे, तो फिर कैसे फेलियर हो सकता है? अगर आप वो चीज को पहले से ही सॉल्व कर रहे हो, तो वो चीज वहां तक जाएंगी नहीं ना। अगर आपको प्रॉब्लम पहले से ही पता है, तो आप पहले से ही वो चीज सॉल्व करो। अगर आप एक दिन पहले वो चीज निकालोगे कि मुझको ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो वो सारी चीजें हो सकती है। इसके लिए आप पहले से ही उस चीज की प्रिपरेशन करो। ओके। थैंक यू मैम। Good morning, ma'am.
गुड मॉर्निंग, बोलिए। My name is Fokiram from TYBSC. पिछले कुछ महीनों से मेरे सर में दर्द रह रहा है और मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कैसे इसको कंट्रोल करूँ। डॉक्टर से चेकअप करवाई थी मैं, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल वो सब ठीक बता रहे हैं, लेकिन मैं हाँ कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हो क्या आप? आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, फैमिली मेंबर्स, किसी से क्लोज हो आप? बातें करते हो किसी से या किसी से बात नहीं करते हो? नहीं नहीं करते हो ना, नहीं तो आपको वो इंक्रीज करना पड़ेगा ना। कोई तो फ्रेंड होगा ना आपका जिससे आप शेयर कर सकते हो अपनी चीजें। पास कोई भी नहीं नहीं है है? मैम, नहीं नहीं, वो लोग है दूसरे दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में, और फिलहाल मेरे पास नहीं है कोई। अच्छा। नहीं, क्या होता है कि अगर आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना, तो अगर आपका अनहेल्दी डाइट हो सकता है एक रीजन, कि आपका स्लीप पैटर्न नहीं हो रहा है या अनहेल्दी डाइट हो रहा है, या तो आप ओवर थिंक ज्यादा कर रहे हो किसी चीज को लेकर, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकते हैं आपको। बेसिक वाला जो मैंने अभी वो बताया ना, आप उस चीज को फॉलो करके देखो। अगर आप एक वीक भी फॉलो करोगे तो भी आपको आप में चेंजेस दिखेंगे। आपको ट्राई करके देखिए। ठीक है मैम, आई विल ट्राई। थैंक यू। Hello, ma'am. My name is Momit Maria. I am studying in TYBSc. मेरा क्वेश्चन है, what are quick stress relief techniques student can use in examination? What are Quick stress relief techniques student can use in examination. क्विकली आपका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आपको चाहिए हाँ. ना, आपको क्या करना है, जस्ट सिट क्वाइटली, क्लोज योर आईज एंड ब्रीथ फॉर 2 or 3 seconds, देन होल्ड इट फॉर 2 or 3 seconds, देन एक्सहेल इट फॉर 2 or 3 seconds। आप आपके ब्रीथ पर कंट्रोल करके वो टाइम का जो है स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। Yes. ओके। Thank you, ma'am, for guidance. Ma'am, there is one question from a boy. Can I invite? यस यस। Okay, okay. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। My name is Hashim Malik Asif Iqbal. I am from TYBSc. My question is, how can students improve focus during long study hours? लॉन्ग स्टडी आवर्स में आपको क्या करना है, आपको आपका शेड्यूल मेंटेन करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप अगर 4 to 5 आवर्स के लिए स्टडी कर रहे हो, तो आपको 15 या 20 मिनट का नैप जरूरी है। नैप मतलब आपको सोना है, रेस्ट करना है, ताकि आपका ब्रेन जो है वो काम हो सके। जो भी आपने चीजें अभी रिवाइज किया है, जो भी लर्न किया है, वो सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होंगी और आपका ब्रेन सेल्स जो है वो काम होंगे। उसकी वजह से जो है आप जब 15 मिनट के नैप के बाद उठोगे तो आप फ्रेश फील करोगे। तो फिर जो है आपका मोटिवेशन ज्यादा होगा और आपको इजीली जो है आगे की स्टडीज जो है वो आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसमें आपको आपके हिसाब से टाइम सेट करना है कि आप 3 आवर्स कंटिन्यू कर सकते हो तो आपको 15 मिनट्स का नैप चाहिए। अगर आप 4 आवर्स कर सकते हो तो 20 to 25 मिनट्स का नैप चाहिए। ऐसे आप आपका शेड्यूल बना सकते हो। Thank you, ma'am. ओके। Thank you, ma'am, for patiently answering all the questions and guiding our students. I hope today's session has helped everyone understand stress better and learn simple ways to manage it. Now, I would like to propose the vote of thanks. I sincerely thank our respected principal, Professor Dr. Murnal Bhardwaj, ma'am, for her constant encouragement and support. I also thank our vice principal, Dr. Ali Anjum, sir. My sincere thanks to Nimra, ma'am, for sharing her valuable time and knowledge with us. I thank the IQS coordinator, Dr. Shakib Ahmed sir, and faculty members, technical teams, and all the students for their cooperation and active participation. With this, we come to the end of today's webinar. Thank you all for joining us. Have a healthy and stress-free life. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.
सिर्फ एक चीज बोलना है मैम एट द एंड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट स्लाइड में हमने जो देखा था कॉल टू एक्शन, इट्स अ Yes, ma'am. रिक्वेस्ट टू एवरीवन के लेक्चर तो हुआ है, लेक्चर का कुछ तो भी इफेक्ट होने के लिए जस्ट टू फाइंड आउट योर स्ट्रेसर, कि आपके जो भी स्ट्रेसर है डेली लाइफ में या जो भी चीजें जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है उसको फाइंड करो, उसको फोकस करो और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं उसके लिए आप कुछ ना कुछ ट्राई करो, तो आपका स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली कम होगा। Yes, ma'am. We will definitely work on it. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.